Hello friends, welcome back to CCSP Certified channel. Today I am uploading recording of 15 February. That was class 5th of the domain 2. It was the last class, and as informed before, there are 8 modules in the domain 2. So in these lectures, module 6 and the 7 8 are being discussed along with some test questions. So before we jump to the recording, I just discussed the peace of mind promotional activities that's going on, and actually IC Square published this promotion activity with the peace of mind name. It may change time to time, so when you might be watching this video, you may have a different order but with the name of some peace of mind. In this they give a additional attempt free of cost in case you are not able to qualify in the first attempt. So this time this offer was till 15th March. If you apply, if you purchase a voucher and you apply for exam by 31st March, you will get a second free attempt by 31st March. And this peace of mind comes almost every couple of months or every 3 months. This offers comes. So what I do normally, I start my CCSP batches according to peace of mind offers. So next batches I'm starting on the 7th April. Recording I have shared. I'm sharing of my previous batch, and my students are availing the peace of mind offer. So next batch students, that will be 25 classes I conduct 7th April to 19 May. There will be 4 days a week, 9 a.m. to 10:30 batch I'm starting, and the next peace of mind offer will be end of May or start week of the June, and that will be beneficial for the students who have already studied this. And as we are all working professional, I make more flexible for them. I share the classroom recordings also in the private YouTube channel to them in case they miss the classes, and they can be rated for these new batches or new offers comes. And if you want to interested, you can write me to ccsp certified@gmail.com. On 5th April, I have scheduled one demo class from 6:30 to 7 p.m. IST. If any of you guys interested, you can join that. I will share the Zoom link in the description. Apart from this, I will share this online video same way I'm sharing this in my YouTube channel. And as I informed before, the classroom medium is normally English, but based on the students, I switch between English and Hindi. So if students are more English friendly, I will continue the English only, but I can give both explanation in Hindi and English based on the class needs. And I'm uploading this recording in this CCSP classroom recording playlist name. If you want to enroll, if you want to purchase this, you can write to me. I will able to share this to very nominal fees to you in case you are not able to go for the dedicated classes. So this for today. Let's go to the recording now. So we have seen the last domain, module 6, and it was related to digital right management. And as I mentioned, there will be a couple of questions from DRM itself. And the main purpose of digital right management is to have a intellectual property rights control. So if they ask what is the main purpose of DRM is or IRM also, it is for the intellectual property rights. Especially it is for copyrights because for the consumer media like ebooks, HDCD, they are the copyright content. They are being preserved by the DRM. Same if it is used by enterprise, it is known as IRM. So IRM is not a different term. It's the same term used when in industry. It is known as IRM. And as I mentioned, IRM has four important properties, and one of them first is the agnostics of the location of the data, where whatever the location the data is processing, the data is secure, and the security or the copyrights or the content of the data is secure via the digital signature that we have seen. That data in use case, it was the data in use case, especially use case of data in use. So how the digital signature works? Before this, there are the four important properties. One question come from this property itself, and they give a scenario, and they ask which property of the IRM will protect the data. So first is persistent performance, PP is very important. So whether you make a duplicate copy of the original file, they will say that you will make a backup of the data, you will make a duplicate copy, someone stole the data, someone intentionally or unintentionally passed the data. So whether you make a duplicate copy, original copy, whether whatever the location of this content, there's a protection is persistent.
because there's a centralized protection there. Same like I am sharing you video content, the centralized control is there on those videos. And if I revoke the access, or I change the permissions, or I delete the contents centrally, even though you have a link, you have content, you copy this somewhere, the file level permission will check and it will not allow you to access those files. So persistent protection is there in IRM. Dynamic policy control, I can control policies if I'm a data owner. So who first is content creator and the data owner. So they are the one, let's say I'm the data owner or I'm the content creator. Then I'll do have a rights to modify permissions, ACLs. So data in the whoever you use the data, uh, they can manage the policy or control who can manage the data, who can see the data. There's a expiration date associated because it's not, there are thousands of content. It's not possible us to manage every content's policy in others once it is generated. So we set a expiry date after a particular duration of time. The automatically the access get revoked because there is expiry date. Automatic expiration is possible on those content or data. And there's auditing also. If whatever the read operation, write operation happening on this data, there is a continuous auditing happens on that data. So IRM is ensure this that we have seen, and we have seen the flow also high IRM works. So like when you same way when you send a email, that content IRM content over email, it makes a connection to the server. This is policy server, and that has a that will be over SSL connection, and that will pass a key, and that key can be used to open the content. And it is as we have seen, there is a centralized LDAP or the policy enforcement server, that database that maintains the data of the authenticated user and writes information. And this way this IRM works. So this, we don't need to go into too deep of the IRM features. We just need to understand this is part of four properties and data in use case, because it uses digital signatures to identify a user. So user is identified from his digital identity. So how this is IRM DRM works. So far so good. Any doubt before we start the new model? Module 7 and module 8 is something we'll cover today. Okay. Good. Yeah. Very important, though it's very small module, just 3 or 4 slides, but at least 3 or 4 questions will come from the data deletion and archival itself. And 100, because as I seen mentioned that there will be over 30 questions from domain to each module will contain 3 to 4 questions. This module contain at least 5 questions also, may contain 5 questions also. So understand this very easy. There are 4 terms here. What is the data retention policy? What are the data deletion procedures? What are data archiving procedures, and what is the legal hold? These 4 concepts we will understand, and there will be one question from this, one from this, one from this, and even multiple questions from deletions also comes in the exam. So data retention policy. So when we retain a data, what are the good data retention policy? There should be a data retention period, like how long this data will be retained. What will be the data format, which format it is being stored, whether a structure or unstructured. There should be a data security implemented. The data which is retained should be not be is like this. Someone can see this, read this, breach this. Should be secure, like they should be encrypted data. And what will be the procedures to retrieve the data once it is being once it is required. So there are 4 important concepts when the data retention policy is implemented. The moment we create and store data, data retention policy becomes important. Industry may, as we have seen, there are 6 steps. Create, store. What are the 6 steps? Revise किया है तो बताओ. CSU SCD हाँ. create, store, use, and then um, एक और क्या था? Store Share, Share, share archive, archive, and last क्या था? destroy. Delete, destroy. Destroy. right. Very important. Delete, destroy में confuse करते हैं वो. And ठीक है. तो ये create और store the second first two step थी. Create and store जो step होती है, जब आपने डाटा क्रिएट किया और स्टोर किया, उसी समय से डेटा रिटेंशन पॉलिसी बिकम इम्पोर्टेंट.
तो हम देखते हैं थोड़ा डेटा रिटेंशन पॉलिसी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है लेजिस्लेशन, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। अलग अलग डेटा की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई बेसल बेसल जानते होंगे, बैंकिंग डेटा होता है, बेसल लॉज होते हैं। पीसीआई डीएसएस क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लॉज होते हैं। यूरोपियन लॉज है जीडीपीआर, जो हम पढ़ेंगे आगे। अमेरिकन का हेल्थ पेशेंट का हिप्पा लॉज होता है। हर एक लॉज की अपनी अपनी डेटा रिटेंशन, डेटा डिलीशन पॉलिसीज हैं। तो उनकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे सोना यू क्रिएट डेटा, और जिस तरह का आपका कस्टमर का डेटा है, soon you become responsible to manage the data उन norms का, और you store the data और do a retention policy according to type of the data। और ये सभी organization level पे, CSP has no responsibilities on any of the legal laws, so organization has to make sure that the type of data they are storing, there should be legislation, regulation and standard requirement of the data policies, retention policies. So audit should be available for next 3 years, next 7 years, based on the different laws. They should to have to prepare the data retention policy accordingly. Data mapping, the process of mapping all relevant data in order to understand data types, structured, unstructured, data format, file type, data locations. So so the data when storing, whether it is a structure or unstructured, what will be the file types, where what is the location it is being stored. So this is also important. Same the data classification, as we have seen, the data is very important to classify, because then only we understand the value of the data. Data retention procedures. So now for each category there will be different procedures, because each data has different policy associated with this one, and definitely monitoring and maintenance of the data. So far so good, quite general चीजें हैं, पर एक क्वेश्चन आएगा, so you will see some simple questions. So try to understand data retention policy impacted by many factors, and the important factors of all of this is चारों स्टेप में सबसे important steps क्या है? What is the important fact? What is important step in all four of these? Security and Okay. retrieving. What about Arpit and Abhishek? डेटा रिट्राइवल प्रोसीजर Retrieval process, रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड नहीं अभिषेक। अब क्या है कि आपने डेटा सब कुछ सेव कर लिया, पर आपको जब लीगल होड से जब रिक्वायरमेंट हुई, सरकार की तरफ से, लीगल एजेंसी की तरफ से डेटा मांगा गया, उस समय आप रिट्रीव नहीं कर पाओ, आपने इंक्रिप्शन की खो दी, या फॉर्मेट ऐसा है कि रिट्रीवल नहीं हो सकता, या फिर कोई भी रीजन हो, यदि आपका डेटा रिट्रीव करके आपने एविडेंस नहीं दिए, तो आपको यू हैव टू फेस द लीगल पेनल्टीज एंड जो भी होगा प्रोसीजर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमेशा डेटा रिट्रीवल का प्रोसीजर्स क्या होगा, हाउ यू विल रिट्रीव द डेटा जो कि आर्काइव में चला गया, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चला गया, रिटेंशन में चला गया। सो ऑल फॉर डेफिनेटली सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन पीरियड भी बहुत, चारों इंपॉर्टेंट है। इफ बट दे विल आस्क क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस विच स्टेप्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस डेटा रिट्रीवल प्रोसीजर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द डेटा रिटेंशन पॉलिसीज आर क्रिएटेड। तो पॉलिसी बनाते हैं तो रिटेंशन का कैसे, रिट्रीवल का कैसे होगा, वो पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से दो क्वेश्चंस डेटा रिलेशन से आते हैं। तो विल सी, हमने वैसे था कि द की पार्ट ऑफ डेटा डिलीशन प्रोसीजर इज टू सेव डिस्पोजल ऑफ डेटा वंस इज नो लॉन्गर नीडेड। या तो मुझे डेटा चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने आधार कार्ड का डेटा लिया, और अब हमने कई सारे डेटा वो वाली डोमेन मॉड्यूल 2 में देखे थे, कई सारे प्रोसीजर्स देखे थे। डेटा मुझे नलीफाई कर दूं, या फिर डेटा में मैं अपने सीएसपी से दूसरे सीएसपी पे जा रहा हूँ, या फिर मुझे डेटा, कस्टमर का डेटा सिर्फ टेम्परेरी रखना था, तो मैंने डेटा डिलीट कर दिया है, ये इंश्योर कैसे होगा? बिकॉज सेफ डिस्पोजल प्रोसीजर और डिजाइन टू इंश्योर दैट देयर इज नो फाइल पॉइंटर और डेटा left behind with the system that could be used to restore the original data. तो समटाइम फॉलोइंग रीजंस होता है कि रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू सेफली रिमूव और डिस्पोज द सर्टेन टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, स्पेशली जो हिप्पा रिकॉर्ड, हिप्पा होता है यूएस का, वो हेल्थ पेशेंट्स का रिलेटेड होता है। तो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, आपने कोई डायग्नोस्टिक्स कराई है, आपका डेटा कलेक्ट किया है, तब पर उनको डेटा डिलीट करना पड़ता है जो कि आपकी डिटेल बीमारी से रिलेटेड होता है, अनटिल अनलेस यू अप्रूव देम कि वो उसको रखे, बिकॉज वो सब चीजें आपकी पर्सनल डेटा में भी काउंट होती है। इवन आपका पर्सनल डेटा भी, जैसे किसी ने आधार ले लिया, तो दे हैव टू
वैलिडेट करने के बाद दे हैव टू रिमूव द डेटा एंड देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू डेटा डिलीशंस एंड बिजनेस पॉलिसीज भी होती है कि कौन सा बिजनेस कौन सा डेटा रखेगी कौन सा नहीं डेटा रखेगी। यूरोपियन कस्टमर का डेटा आप नहीं रख सकते किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज के डेटा सेंटर्स में, तो वो सभी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो डेटा डिलीशन के क्या ऑप्शन होते हैं? सो सबसे बेस्ट तरीका तो जो ऑन प्रीमाइस में भी होता है वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क। जिस हार्ड डिस्क में डेटा है वही हार्ड डिस्क तोड़ दो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। वो नॉर्मली ऑन प्रीमाइस सिस्टम में होता है क्योंकि इन क्लाउड द डेटा इज दे आर मल्टी टेनेंसी, डेटा इज शेयर्ड or the hard disk is shared between different customers. So the best option that was in on-premise is not applicable in the cloud. The second option was the degaussing, this magnetic wiping. So it is also being used for the magnetic tapes. So storage type यदि that support the magnetic wiping, then degaussing is a term that can be used. But cloud data storage, we cannot use the degaussing as the most of the cloud provider are using SSDs and those are immune from the magnetic wiping. तो इसलिए वो क्लाउड में डिगोसिंग वाला ऑप्शंस नहीं चलता है, ना फिजिकल डिस्ट्रक्शन चल रहा है ना डिगोसिंग चल रहा है। थर्ड है ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग में रीराइट कर दो डेटा, there's a worst case क्योंकि there is a pointer is always available and those can be retrieved big data, but these are the options। यदि ऑप्शन आए कि what are the options for data disposals, this is physical destruction, degaussing, overwriting, the last is encryption। So encryption is they may not give the crypto shading. If they give the option what are the data disposal options, there will be 4 options, the encryption will be one of the option that encrypt the data and throw the keys। तो ये वाला जो हमने देखा क्रिप्टो शेडिंग में, तो क्लाउड में बिकॉज अदर ऑप्शंस आर नॉट वेरी हेल्पफुल इन द क्लाउड, वी गो विद द इंक्रिप्शन ऑप्शन जो कि बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, सो फार सो गुड। कोई डाउट है हाँ, इसमें? वन डाउट, अगर या इंक्रिप्शन करके भी रखते हैं तो कॉस्ट तो लगेगी राइट, क्योंकि अपना स्पेस तो अपन ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं। डेटा तो आपने आपने सीएसपी को बोला है कि मेरा डेट में आई एम लिविंग नाउ माय आई एम लिविंग एंड डिलीट माय डेटा। बस सीएसपी कैसा नहीं डिलीट करे, पर मैं अपनी की लेके जा रहा हूँ तो उसके पास हो, क्योंकि हार्ड डिस्क में डेटा था। soon I leave, it will overwrite the data, or even though it will not overwrite the data, it will not able to retrieve। so वो डेटा डिलीशन में इंक्रिप्शन इससे हेल्प कर रहा है कि कीज कस्टमर के पास है और सीएसपी इसको रिट्रीव न कर सके। बाकी स्टोरेज की कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है सभी कॉस्ट में, और हम तो कस्टमर है ही नहीं अब। So CSP whether they delete it or they keep it, it's not is their business, we should not be worry। पर हाँ, हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं क्योंकि बाकी ऑप्शंस क्लाउड में इतने इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ओके। क्योंकि डेटा की अभी हम पढ़ेंगे जीडीपीआर में डेटा लॉस में 20 बिलियन का पेनल्टी है यदि आपका डेटा लॉस होता है यूरोपियन डेटा का, बहुत बड़ी पेनल्टी है। तो विल सी दोस लॉस कि हम डेटा यदि सिक्योर नहीं रखा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन डाउन हो सकती है एक दिन में। विल सी देम। अब मैं क्रिप्टो शेडिंग देख लेते हैं, लास्ट जो कंसेप्ट है बिफोर वी अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। क्रिप्टो शेडिंग और द क्रिप्टो इरेजिंग भी बोलते हैं या डिजिटल शेडिंग भी बोलते हैं, कीवर्ड्स ऐसे भी आ सकता है, डिजिटल शेडिंग भी आ सकता है, क्रिप्टो शेडिंग भी आ सकता है। प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेटिंग डिस्ट्रॉइंग द इंक्रिप्शन कीज, हमेशा देखना यदि वो देखे प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेटिंग डिस्ट्रॉइंग द डेटा तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि डिलीशन ऑफ द इंक्रिप्शन की ऑप्शन सेलेक्ट करना है यदि क्रिप्टो शेडिंग आए, ना कि डेटा डिलीशन। ये आ सकता है क्रिप्टो शेडिंग इज यूज टू डिलीट द डेटा, तो वो ऑप्शन 100% गलत है। क्रिप्टो शेडिंग इज प्रोसेस टू डिलीट द कीज, इंक्रिप्शन कीज दैट आर यूज टू इनक्रिप्ट द डेटा ओरिजिनली। हम डेटा को टच ही नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो शेडिंग में, हम सिर्फ डिलीट की को डिलीट कर रहे हैं, डेटा स्टिल देयर बट इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है, organization utilizing clouds can encrypt all data using the organization control key which can be securely destroyed और rendering data stored in the cloud। अब हमने तो एक और चीज देखी थी कि हम क्लाउड को तो हमने की सीएसपी को हमने की दे दी थी, क्योंकि विदाउट की सीएसपी हमारे बिहाफ पे तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ही नहीं कर सकता। उसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज में कोई डेटा सेव करना है हमारा डेटा, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, ओरेकल मैनेज की और कस्टमर मैनेज की। तो हमने कस्टमर मैनेज की उनको दी, उनके वॉल्ट में हमारी की है और वो की यूज करके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं, और वी हैव सीन दैट की वहां से ट्रेवल होके आती है वॉल्ट से इन मेमोरी में जाती है और डेटा इंक्रिप्ट करके सेव करती है। सो की तो स्टिल
उनके पास है, क्या नाम, CSP के पास है, तो फिर उसके लिए क्या होता है, कीज को भी इंक्रिप्ट किया जाता है मास्टर की जो कि कस्टमर के पास है। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि मास्टर की ट्रेवल होके जाती है पर वो मेमोरी में रहती है, वोल्ट वाली की को डिक्रिप्ट करती है, मास्टर की मेमोरी से डिलीट हो जाती है, वोल्ट वाली की फिर डिक्रिप्ट होके प्रोसेसिंग करती है। तो उस केस में मास्टर की हमेशा कस्टमर के पास रहेगी। और कस्टमर तो हम दो ऑप्शन हो गए, एक तो क्या डेटा का इंक्रिप्शन हो गया कस्टमर की से, और कस्टमर की भी इंक्रिप्ट हो गई एक और कस्टमर की से जो कि मास्टर की है, और मास्टर की डिलीट कर दी जाती है। तो वो भी एक ऑप्शन है, तो यदि वो भी ऑप्शन आए तो वो भी सेलेक्ट करना है। अल्टीमेटली की डिस्ट्रॉय करनी है, या तो मास्टर की हो या CSP की हो, वो कस्टमर की हो। ठीक है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं बिफोर वी जम्प्स टू नेक्स्ट मॉड्यूल। ये मॉड्यूल में एक और कंसेप्ट है लीगल होल्ड का, we'll see in the end. But इसका question, just try this answer. We'll start with the Arpit first. Arpit, answer दो. Safest way to disposal of electronic records within a cloud environment. Encryption. Correct. So now this is to you, Abhishek. He says electronic record within a cloud environment. Encryption ही होगा और नहीं overriding. नहीं, तो अब इन ओवर राइटिंग तो कभी हो नहीं सकता। यदि यही क्वेश्चन जैसे हमने पूछा था, यदि पीछे आया था तो इसमें फिजिकल डिस्ट्रक्शन था, पर विल नॉट सेलेक्ट द फिजिकल डिस्ट्रक्शन दो इट इज अ बेस्ट अप्रोच। पर द एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑब्वियस तुम खुद ही हो, मल्टी टेनेंसी ही नहीं है, तुम ही प्राइवेट हाँ क्लाउड पे ले रखा है तुमने। तो अच्छा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री है कि जैसे ही हमारा हम चाहें तो आप हार्ड डिस्क डिलीट कर दो, पर हार्ड डिस्क। कैसे पता चलेगा कॉन्टेंट में हार्ड डिस्क डिस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं? वो तो एविडेंस मांगेंगे ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फाइल किया कि जब भी हार्ड डिस्क डिलीट करो, हार्ड डिस्क का जो वो है मुझे डिलीशन मुझे दो वापस, या फिर मैं डिलीट कर दूं मुझे दे दो, मैं हार्ड डिस्क डिलीट कर दूंगा जब भी मैं डिलीशन चाहूँ डाटा का, और नई हार्ड डिस्क लगाओ। तो ये तो यदि आपके, तो यदि ये ऑप्शन हो, सेम हम्म, क्वेश्चन में यदि ऑप्शन हो कि तब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। में लिखा है, तो 100% आपको बेस्ट अप्रोच तो फिजिकल डिलीशन पे जाना है। ठीक है, दिस टू यू कार्तिक। Okay. कार्तिक, कैन यू हियर मी? I'm just going through the options. ओके ओके। The blast radius is too wide. D option. ये पढ़ा तुमने अभी तक ब्लास्ट रेडियस के बारे में पढ़ा क्या? No. मैंने बताया था ना, डीगोसिंग। डीगोसिंग ऑप्शन क्यों बी नहीं कर है। सकते, हाँ डीगोसिंग क्यों नहीं कर सकते कि हम SSDs यूज करते हैं, और ये हमने अभी तो पढ़ा है, नोट लगाया था। क्लाउड स्टोरेज may not be affected by degaussing as most of the cloud providers are using SSDs for storage। तो वो वाला ऑप्शन इसलिए हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अ, वो SSDs यूज कर रहे हैं। हाँ वो मैं वो कई बार नहीं हो सकता है, वो कई बार डाउन। जो पढ़ाई नहीं उस पर क्यों जाना है, वो कई बार ये भी दे सकते हैं। ठीक है ओके। मतलब इतना भी नहीं दे, यही यही दे दें, तब भी तुमको ये पता नहीं चले कि हाँ ये SSDs है, इसलिए नॉट इम्पेक्टेड बाय डीगॉसिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हाँ वैसे 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 क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ था, ये क्वेश्चन CSP की बुक में से है। इसमें चैप्टर आपके उसमें आएगा भी डोमेन 2 में, जब वो यू विल डू इट, वहाँ पूरा दिया हुआ है SSDs पर। ये भी आ सकता है कि क्लाउड डेटा स्टोरेज में नॉट बी अफेक्टेड बाय डीगॉसिंग, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये SSD से इम्पैक्ट रिलेटेड है। ठीक है, दिस टू यू अर्पित। Okay. According to ISC2, where should the cloud customer name create to be stored?
it's with the cloud customer. ओके सो जब मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो ना, तो पहले ऑप्शन पे हम सीएसपी में क्या होगा, वहाँ पे एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो क्लाउड कस्टमर भी था और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर में हमने की एस्क्रो भी रवि देखा। रवि हम्म, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर में वॉल्ट हो सकता है या HSM हो सकता है, राइट? नहीं नहीं, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर मतलब की एस्क्रो सर्विस, और एचएसएम और जो वोल्ट होता है वो ये खुद के ही उनका उनका ही खुद का वोल्ट। सेम सीएसपी लिखा हो तो सीएसपी का एचएसएम या सीएसपी का वोल्ट होगा, और थर्ड पार्टी में की एस्क्रो वाला कंसेप्ट भी हो सकता है ना। तो आईसी स्क्वायर बोलता है कि कस्टमर की क्लाउड प्रोवाइडर के अलावा कहीं पे भी हो वो सेफ है एटलीस्ट, क्योंकि वहीं डेटा के पास हो तो क्लाउड प्रोवाइडर उसको मिसयूज कर सकता है। सो एनीवेयर बट नॉट विद द क्लाउड प्रोवाइडर। सो कहाँ पे भी की स्टोर करना चाहिए कि कहीं भी करो पर क्लाउड प्रोवाइडर के पास ना करो, या तो आउटसाइड डेटा सेंटर में कर दो, थर्ड पार्टी के पास कर दो, क्लाउड कस्टमर के पास कर दो। यदि बोला बेस्ट वे हो तो बेस्ट वे हमेशा कस्टमर के पास होनी चाहिए, है ना। पर कहीं पे भी हो पर क्लाउड प्रोवाइडर के पास ना हो, ये आईसी स्क्वायर बोलता है, ठीक है। दिस टू यू अभिषेक। Again, traditional IT environment, proper management is crucial in the cloud. Following principle is not true recurring key management. Random number when generating key. Public key should never be shared with anyone. Losing the key is equivalent to losing the data. Symmetric key should be passed. C. नोट ट्रू लेना है ना हमको, नोट ट्रू ढूंढना है इसमें। अच्छा, not true. Okay. Symmetric key should be passed out of band. B है ना, public key should never be shared with. Okay, वो भी है. Is good practice individual number. ऑप्शन नंबर ए है, पर भाई पढ़ा ही नहीं कभी. एक्चुअली ऑप्शन ए नहीं भी पढ़ा तो ऑप्शन बी तो पढ़ा है। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है? पब्लिक भी should not be shared to anyone, पब्लिक but की तो any. सब शेयर के लिए ही होती है, प्राइवेट की हाँ, कभी शेयर बट नहीं वो करना चाहिए। हाँ वो तो पता है, पर सबको तो शेयर नहीं करते, वो डेजिग्नेटेड पीपल को ही शेयर करते हैं ना पब्लिक नहीं की. नहीं नहीं, पब्लिक की आपकी उसमें शेयर होती है वहाँ की रिपोजिटरी में, वहां से आपकी कोई पब्लिक लेके आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। तो पब्लिक हाँ. की ही पब्लिक पर्पस के लिए इट शुड बी और इट कैन बी शेयर्ड हम्म, विद एनीवन। प्राइवेट की मस्त यहाँ प्राइवेट की जगह हाँ वो पब्लिक तो की लिख दिया पता है, उन्होंने। हम सोचा पहले पब्लिक की, पर फिर. बाकी सूडो रैंडम नंबर जो एक्चुअली क्या है कि जितने भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से, चाहे आरएसए होगा जो भी पढ़ा हो कभी, तो वो सिर्फ प्राइम नंबर्स पर डिपेंडेंट है। प्राइम नंबर क्या होता है? हम्म. सूडो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं जो को हम्म. प्राइम हो। तो वो हम्म. थोड़ा वहां से दिया है, वो नहीं भी पता हो तो अपन को जो पता है उस पर देखना पड़ता है। हम्म. पब्लिक की के बारे में पता है कि पब्लिक की तो ऐसा है कि शुड नॉट बी शेयर तो होना ही चाहिए, वो प्राइवेट की होता तो हाँ. आंसर सही होता। हाँ. तो ये भी सीसीएसपी का बुक का क्वेश्चन है। दिस टू यू कार्तिक। Not a step. नोट ए स्टेप। क्रिप्टो शेडिंग में ये एक स्टेप नहीं हो सकती। A option. इनक्रिप्ट डेटा तो हमेशा पहला स्टेप होगा ही ना, ताकि तो एक इनक्रिप्ट डेटा हो, फिर डेटा की जो की हो, की को हम डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करें या वापस इनक्रिप्ट कर दें किसी और से, मास्टर की से। तो बैकअप ऑफ द की कभी भी क्रिप्टो शेडिंग का स्टेप हो सकता है, क्योंकि की तो हमको डिलीट ही करनी है। The safe backup of shedding है. Yeah. Safe backup of secondary resulting key. इसलिए थोड़ा आंसर सोचो, पढ़ो, फिर जवाब दो। रवि, दिस टू आई गेस योर पे। हम्म। बैक पीछे वाले क्वेश्चन में रवि, डिस्ट्रॉय वाला भी तो एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अच्छा की रिजल्टिंग का। डेटा नहीं हाँ है। ये, डिस्ट्रॉय हाँ करना हाँ, ही ये है. डेटा डेटा का डेटा होगा तो नहीं होगा, पर की होगा। जो भी की से रिलेटेड आंसर है, पहले डेटा किसी ओबीएस इनक्रिप्ट करना है, फिर इनक्रिप्ट करने के बाद की को या तो डिस्ट्रॉय उसी समय कर देना है, या फिर की को किसी और मास्टर की से इनक्रिप्ट करना है, और मास्टर की को डिस्क्रिप्ट कर दो या ओरिजिनल की को डिस्ट्रॉय कर दो। डेटा डिस्ट्रॉय के बारे में होगा तो वो नहीं सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है।
लेकिन रवि, जैसे श्रेडिंग देखेंगे तो श्रेडिंग वाले प्रोसेस में ये ऑप्शन कैसे आएगा? अभी चलते हैं वापस ट्रेडिंग वाली स्लाइड पे चलते हैं। The sharding is a cryptographic process of deliberating destroying the encrypted data that were used to encrypt the data originally. जब तक डेटा इंक्रिप्ट ही नहीं हुआ तब तक उसका वो डेटा इंक्रिप्टेड है, तभी तो हम शेडिंग उस पर लगा रहे हैं, उसे की लॉस कर रहे हैं। यदि डेटा यूजलेस डेटा है, डेटा इतना कॉन्फिडेंशियल ही नहीं है, डेटा के क्लासिफिकेशन में उसका क्लासिफिकेशन लो है, तो उस पर क्रिप्टो शेडिंग का तो हमने पहले बताया था हमेशा। द व्हाट इज द प्री स्टेप द डेटा शेडिंग। इवन इंक्रिप्शन से भी प्री स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन। यह भी एक क्वेश्चन था मेरे एग्जाम में। व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ द क्रिप्टो शेडिंग, इसमें क्लासिफिकेशन भी था। तो क्लासिफिकेशन भी एक आंसर करेक्ट है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा डेटा का, तो हमको पता होगा कि कौन सा डेटा सिक्योर करना है एक्चुअली, कौन सा यूजलेस जो जो इसको वो डिलीट ना भी हो तो इसकी टेंशन नहीं करनी है। इसके बाद उस डेटा को इनक्रिप्ट करना है, तो पहला स्टेप था वो क्लासिफिकेशन, सेकंड था इनक्रिप्ट द डेटा, थर्ड था डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग द की, जैसे ये है। तो इसीलिए डेटा का पहले हाँ, तो ये अलग क्लासिफिकेशन। स्टेप है ना, राइट? नहीं ये नहीं, डेटा। ये क्रिप्टो शेडिंग का ही स्टेप्स है। क्रिप्टो शेडिंग जब भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो क्रिप्टो शेडिंग का सबसे पहले होगा डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा इंक्रिप्शन, देन की डिलीशन। तो की डिलीशन इज द लास्ट स्टेप। या तो तुम डायरेक्टली की डिलीट कर दो या फिर की को फिर इंक्रिप्ट करो और फिर इंक्रिप्ट वाली की डिलीट कर दो। नहीं, दिस हाउ क्रिप्टो ट्रेडिंग is just the deletion of the keys essentially, right? It is not responsible for encrypting the data. crypto sharding is deletion of the data. The ultimate purpose of the crypto sharding, the process is Deletion of the keys or the deletion of the data? crypto sharding कर क्यों रहे हैं हम? डेटा डिलीट करना है, परंतु उसका प्रोसेस क्या है? वो डिलीशन ऑफ द की है। द पर्पस ऑफ क्रिप्टो शेडिंग इज टू डिलीट द डेटा। पर्पस पूछा जाए तो इसका पर्पस तो हम डेटा डिलीट ही कर रहे हैं। इसका प्रोसेस पूछा जाए, ये प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस है कि हम डेटा इंक्रिप्ट करें और कीज को डिलीट कर दें, ताकि अल्टीमेट पर्पस क्या है? तो पर्पस है डिलीशन ऑफ द रवि डेटा। रवि आप एक बार क्रिप्टो शार्डिंग वाली स्लाइड पे जाएंगे जो भी आपने पढ़ाई थी। ठीक है, एक सेकंड। थोड़ा एक्चुअली कंफ्यूजन वहीं से हो रहा है, हाँ मतलब चलते हैं, आई वाज वापस आल्सो चलते हैं। कंफ्यूज। हाँ, लाइक जो आपने अंडरलाइन कर रखा है ना, प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग द इंक्रिप्शन कीज ओनली। हाँ, दैट वाज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द डेटा, ओनली वही की जो कि डेटा इंक्रिप्ट करे। तो ओरिजिनली द पहला स्टेप से हमेशा डेटा का इंक्रिप्शन करना और फिर की को डिलीट कर देना। तो डेटा डिलीट डिलीट। करने मतलब ही तो लॉस हो गया डेटा। हाँ, और पर्पस क्या है? यदि पर्पस पूछा, ये प्रोसेस अलग है, पर्पस क्या है? पर्पस तो हमको डेटा डिलीट करना है, तो हम डायरेक्टली डेटा डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टली डेटा डिलीट करने का तरीका ही नहीं क्लाउड में है। ओके ओके, गॉट इट। गॉट इट? तो प्रोसेस पूछा जाए तो प्रोसेस तो पूरा वही है कि इनक्रिप्ट करें डेटा को फिर की को डिलीट कर दें। और पर्पस पूछा जाए, पर्पस तो हमको डेटा डिलीट करना है। ठीक है, सो फार सो गुड कार्तिक। Yeah, okay. ओके, तो क्रिप्टो शेडिंग सिर्फ की डिलीट करके क्या करोगे? क्रिप्टो शेडिंग का मतलब है कि हमको डेटा डिलीट करना है, उसके लिए हमने डेटा इंक्रिप्ट किया और की डिलीट कर दी। तो बैकअप ऑफ द की कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैकअप कर लिया तो हम डेटा डिलीशन कभी कर ही नहीं सकते। एंड दिस टू यू अभिषेक आई थिंक। आई गेस दिस So इज the following might ठीक है, तीनों ट्राई कर लो। हाँ, तीन crypto ही लोग हैं। shading difficult or useless. The cloud provider also managing the original keys. Lack of user access. ये ऑप्शन। ए ऑप्शन। क्योंकि यदि क्लाउड प्रोवाइडर ही कीज मैनेज कर रहा है और वही ओरिजिनल कीज है, तो क्रिप्टो शेडिंग का पर्पस ही यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि कीज रह जाएगी कहीं ना कहीं स्टोर क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास। ठीक है, दिस टू यू कार्तिक आई थिंक। ये पढ़ा है मैंने कि दो कंसेप्ट पढ़ाए थे, मतलब अभी मैं जवाब नहीं देता हूँ, पहले यू यू इट्स ट्राई यू गाइस। अ थ्रेट आई गेस। व्हाट अबाउट यू अर्पित एंड कार्तिक? आई गेस इट्स अ थ्रेट। Read for all four options properly. ओके, pin controls of encryption keys and the cloud provider only.
process this. For number D, Risk. Okay. risk. And what about you, Karthik? Encryption key is the cloud provider. I think D होगा. Okay. आंसर है सी. Case हमने Yes, you. हमने acquiring of the right हमने of power. हाइब्रिड क्लाउड के दो यूज केस देखे थे. एक तो क्लाउड बर्स्ट और दूसरा था कि जब कस्टमर मैनेज करे की को. और हमने देखा था कि जब कस्टमर कंट्रोल है की का तो ना तो वो रिस्क है ना थ्रेट है, क्योंकि कस्टमर के पास की है. ये मॉडल ये क्या कंसिडर है, ये हाइब्रिड क्लाउड का. तो वी हैव रीड दिस गाइस. तो इसीलिए स्लाइड देखो, इसमें हमने पढ़ा है कि who manage the key. If the keys are managed by customer, this is a use case associated with the hybrid cloud. और दो एक और केस था क्लाउड बर्स्ट वाला, वो भी हाइब्रिड क्लाउड का यूज केस है. तो कहीं जब हम की मैनेजमेंट इन द क्लाउड पढ़ रहे थे, तो जब की आउटसाइड है तो प्रोसेसिंग आउटसाइड है, वहां से आ रहा है, तो ये हाइब्रिड क्लाउड जिसमें ऑन प्रीमाइस भी पार्ट कर रहा है और क्लाउड भी पार्ट कर रहा है प्रोसेसिंग में. तो दिस इज द यूज केस जो हाइब्रिड क्लाउड से एसोसिएटेड था. और बहुत पीछे छूट गया, कहीं पे हमने पढ़ा है देखना. पर ये दो केसेस है वो हाइब्रिड क्लाउड के केसेस है. एक तो क्लाउड बर्स्ट और एक की मैनेजमेंट इज द आउटसाइड ऑफ द कस्टमर, आउटसाइड ऑफ द सीएसपी. then the on premise network is also involved, and there's a use case associated with the hybrid cloud. ठीक है, कहाँ है हम, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गई है. हाँ. सो जब जब हमारे पास कस्टमर के पास कीज हैं, तब हमारे पास थ्रेड्स एंड रिस्क एसोसिएटेड ऑप्शन हट जाएंगे, फिर कस्टमर मेंटेनिंग द कीज. और हमारे पास जो ये लास्ट ऑप्शन है, राइट्स ऑफ द प्रोवाइडर्स, वहाँ पे कीज किसी राइट से, वो कॉपीराइट से एसोसिएटेड डेटा नहीं है वो. तो वो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं, पर हाइब्रिड क्लाउड ऑप्शन है. तो विल गो विद द हाइब्रिड क्लाउड जब कीज आउटसाइड है. ठीक है. यदि इंक्रिप्शन आउटसाइड हो रहा है तो 100% वो हाइब्रिड क्लाउड का केस है. अब लास्ट टर्मिनोलॉजी है जो इस डोमेन मॉड्यूल की थी, वो लीगल होल्ड्स एंड लेजिटिमेट होल्ड. एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, दो इसको हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे डोमेन 5 में बहुत डिटेल में. बट just we understand the concept. So legal hold is a process that organization uses to preserve all form of potentially relevant information when litigation is pending or reasonably anticipated. So legal hold एक ऐसी legal terms है जिसमें एक नोटिस दिया जाता है. किसको दिया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना. यदि कहीं पे भी कोई लेट्स से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आया है, पता चला कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो इम्पोर्टेंट डेटा था नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, आधार का ही डेटा था मान लो, है ना. उन्होंने आधार वाली कंपनी ने डेटा रख रखा था ओरेकल क्लाउड पे, डेटा लॉस हो गया आधार का. तो गवर्नमेंट जो लीगल नोटिस देगी, लीगल होल्ड नोटिस किसको देगी, ओरेकल को कि आधार ऑर्गेनाइजेशन को? who will get the legal notice? आधार. आधार ओनली, हमेशा याद रखना ये आंसर. तो इस ऑर्गेनाइजेशन हु इज मेंटेनिंग द डेटा इज रिस्पांसिबल लीगली, so they will get a legal notice. What the legal notice is say that suspend the normal disposal or processing of the record, such as backup, recycling, archiving, media and other storage and management of the document and information. कि बोला कि अगले 10 दिन तक, अगले 15 दिन तक, अगले 1 महीने तक you will not able to process, either डिस्पोज कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो इस रिकॉर्ड की. ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड से, सेट ऑफ रिकॉर्ड से, set of data है, अब you cannot touch that data. The legal hold is will be issues as a result of current or anticipated litigation, audit, government investigation etc. to avoid evidence spoliations. क्यों करती है? ताकि आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सको, उस इम्पोर्टेंट डेटा को ना डिलीट कर सको ना मॉडिफाई कर सको. तो लीगल होल्ड में डेटा को आपको वैसा के वैसा ही रखना पड़ता है जैसा वो भी स्टोर है. You cannot delete or modify those data because it is known as a legal hold. और एक ई डिस्कवरी एक टर्मिनोलॉजी आएगी अभी, ई डिस्कवरी ही बोलते हैं लीगल होल्ड को. एक्चुअली they issue a discovery notice to discover the evidences or chain of the studies, chain of the sequence, कि ये डेटा
और ये डेटा अगला एक जैसे एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल है, किसी का कॉपीराइट वायलेशन का केस लगा, जरूरी नहीं नेशनल सिक्योरिटी का, that this company is using my data, my video, my creativity, and then court review that content, so you cannot modify delete those कि यार ये तो किसी और कंपनी का चुराया हुआ डेटा था, हमने जल्दी से डिलीट कर दे। then legal hold आपके साथ एसोसिएटेड होता है ना, यू हैव टू इंश्योर कि वो रिलेवेंट डेटा और प्रिजर्व रहे until unless कोर्ट हियरिंग चल रही है, कोर्ट आपको, तो वहाँ पे रिटेंशन एंड once the party reasonably anticipated litigation, it must suspend its routine document retention destruction policies। तो हमने देखा कि उसका रिटेंशन और डिस्ट्रक्शन पॉलिसीज कंपनीज बनाती है कि कितने दिन तक रिटर्न करना है। मान लो कंपनी ने कहा कि आपको 1 साल अभी रिटर्न करना है, डेटा को डिलीट नहीं करना, पर आपकी रिटेंशन पॉलिसी 6 महीने की है, तो बाकी बाकी सब डेटा डिलीट कर दोगे, पर उस डेटा को डिलीट नहीं करोगे, ना डिस्ट्रॉय करोगे, उसको कोर्ट जैसा बोलेगा वैसे का वैसा रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ई नोटिस पे कौन सी पॉलिसीज कंपनीज की होल्ड पे चली जाती है, कंपनीज की रिटेंशन डिस्ट्रक्शन पॉलिसीज होल्ड पे चली जाती है, एंड पुट इन प्लेस ए लिटिगेशन होल्ड टू इंश्योर दैट द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? अभी क्वेश्चन हम करेंगे इस पे, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज की रिटेंशन डिस्ट्रक्शन पॉलिसीज नहीं लगेगी, तब तक नहीं लगेगी जब तक कि कंपनीज पर लीगल होल्ड लगा हुआ है, कंपनी पे लीगल होल्ड स्टे है, ई डिस्कवरी स्टे है बाय द गवर्नमेंट, बाय द लॉज, बाय द एनी लीगल अथॉरिटीज। ठीक है, एक है कि डेटा आर्काइविंग प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म्स, हम देख लेते हैं। जो हमने रिटेंशन पॉलिसी देखी, डिलीशन पॉलिसी देखी, एक आर्काइविंग भी, डेटा को आर्काइव करके रखना पड़ता है। तो डेटा आर्काइविंग प्रोसेस आइडेंटिफाई मूविंग इनएक्टिव डेटा आउट ऑफ द करंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड इनटू स्पेशलाइज्ड लॉन्ग टर्म आर्काइविंग स्टोरेज सिस्टम्स। तो जो भी लॉन्ग टर्म आर्काइविंग स्टोरेज सिस्टम्स होता है, जहाँ पे डेटा इनएक्टिव होता है, डेटा का कोई ऐसे प्रोसेसिंग नहीं होती है, सॉरी कहाँ चला गया, तो हम भी जब भी आर्काइव पॉलिसिंग कराते हैं, रिटेंशन रिटेंशन जब लॉन्ग टर्म रिटेंशन हो, जैसे रिटेंशन पॉलिसी बोलती है कि आपको ये डेटा 7 ईयर के लिए रिटेन करना है, तो हम उसको आर्काइव में मूव कर देते हैं अनटिल अनलेस वो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो, फ्रिक्वेंटली यूज नहीं। तो इसके लिए डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइविंग विद इंक्रिप्शन कुड प्रेजेंट ए चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड्स टू की मैनेजमेंट। यदि डेटा हमने 7 साल के लिए कहीं भी आर्काइवेबल स्टोरेज में डाल दिया, इंक्रिप्ट करके, प्लेन टेक्स्ट में तो रखेंगे नहीं, उसी की कैसे मैनेज करें, ये बड़ा एक चैलेंज होता है इंडस्ट्री के लिए। तभी वो की एस्क्रो वाले कंसेप्ट आते हैं कि कहीं की एक कॉपी बाहर रखी जाए उस लॉन्ग टर्म आर्काइवल डेटा का, एक की खुद के पास हो, एक कहीं और सीएसपी के पास हो, क्योंकि कंपनीज उनको जब रिट्रीव करना हो तो वो रिट्रीव हो सके, अगर की लॉस हो गया तो डेटा रिट्रीवल लॉस हो गया। डेटा का मॉनिटरिंग कैसे, प्रोसीजर्स, एबिलिटी टू परफॉर्म ई डिस्कवरी, जो एज वी हैव सीन, हमने डेटा रिटेंशन इसलिए किया है कि हो सकता है कि कोई केस आज नहीं लगे। 7 साल का बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स का 3 साल का है, कुछ नॉर्म्स 5 साल के हैं कि आपको 5 साल का ऑडिट रखना है, आपके 3 साल बाद कोई इंसिडेंट हो, उसके 3 साल बाद आपके पास केस लगा, तो आपको एविडेंस देना है कि हाँ 3 साल पहले का डेटा कहाँ है। तो ई डिस्कवरी जब होगी उस समय आपको डेटा नहीं होगा, तो यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। और ऐसे ही बैकअप, डिजास्टर रिकवरी हो कभी आपको डिजास्टर हुआ तो उनका बैकअप लेने के लिए ऑप्शन हो। मीडिया टाइप एंड डेटा फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑप्शन आएगा कि किस फॉर्मेट में, और मीडिया टाइप क्या है, इस पे आप डेटा रख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। मीडिया टाइप ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर नहीं कर सकता, वो वोलेटाइल मीडिया टाइप है। तो ऐसा मीडिया टाइप यूज करना है तो हमने कई तरह के स्टोरेज टाइप देखे थे, उसमें से कुछ स्टोरेज टाइप लॉन्ग टर्म स्टोरेज टाइप भी हैं, तो वो वाले हमने देखे थे। लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी था एक, वो वाला यूज करना है कि आपको डेटा स्टोर करना है, और फॉर्मेट ऐसा रखना है कि वो आगे रिट्रीव, आगे फॉर्मेट उसको ऐसा मान लो ऐसे फॉर्मेट में रखा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो उसको रिट्रीवल बहुत मुश्किल होगा। आगे क्या एल्गोरिथम लगाओ आप निकाल के लिए, किस एल्गोरिथम से आपने लिखा, तो वी हैव टू मेक फॉर्मेट इज मीडिया टाइप वेरी इंपॉर्टेंट। उसके प्रोसीजर्स, रिस्टोरेशन के प्रोसीजर्स डिफाइन होने चाहिए, किस तरह इसको रिस्टोर करना है रिट्रीवल प्रोसेस में। ठीक है, लास्ट मॉड्यूल है हमारा। चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और चाहो तो कंटिन्यू करें, बोलो ब्रेक चाहते हैं या कंटिन्यू करें? पहला मॉड्यूल टाइम लगेगा इसमें? मुझे लगता है 15-1 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बस यही है। बोलो कंटिन्यू कर लें 15 मिनट और क्वेश्चन देख लें। फॉर मी इट्स गुड। ओके, तो चलते हैं, चलो इसको कर ही लेते हैं। सो डेटा ट्रेसेबिलिटी का यहाँ सिम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि
डेटा की ट्रेसेबिलिटी और ऑडिटेबिलिटी, क्योंकि डेटा हमने रख लिया, डेटा हम स्टोर भी कर रहे हैं, पर डेटा की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और डेटा के एनालिसिस से हमको पता चलेगा एक्चुअली कि किसने क्या परफॉर्म किया, क्या एविडेंस किया। तो जब भी हम डेटा लॉग्स या इवेंट्स को लॉग्स करते हैं तो हम 4 W पे काम करते हैं। व्हेन ए इंसिडेंट हैपन, लाइक लॉग डेट एंड टाइम, इवेंट डेट एंड टाइम, वेयर, देन एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन में वहाँ क्या एड्रेस था, क्या लोकेशन थी, कौन था, ह्यूमन था, मशीन था, सोर्स एड्रेस क्या था, यूजर आइडेंटिटी था, और व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट नेम, क्या सीवियरिटी थी, क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या इवेंट उन्होंने किया। तो 4 W, जब भी हम लॉगिंग और इवेंट एट्रीब्यूट्स देखते हैं तो 4 W वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाट। ठीक है। एंड जी, जो हमको आइडेंटिटी एट्रीब्यूशन की क्यों, तो OWASP जो हम देखेंगे अभी, OWASP ने कई तरह की चीट शीट बनाई है, कई तरह की गाइड्स दी हैं। तो एक गाइड दी जो हम पढ़ेंगे डोमेन 4 में, जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे है। द टॉप 10 OWASP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर 2 साल में टॉप 10 वेब वल्नरेबिलिटीज देती है। तो वैसे ही उन्होंने इसके लिए लॉगिंग के लिए भी एक चीट शीट दी है। तो पब्लिश ए सीरीज ऑफ गाइड्स कॉल्ड चीट शीट, इंक्लूडिंग वन फॉर ऑन द लॉगिंग भी दिया है। तो उनके हिसाब से क्या क्या सिनारियो, तो ये सिनारियो OWASP पिन दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, पर ये सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी लॉगिंग होती है तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर यहाँ से आता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है व्हेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्यों, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन टाइम अक्रॉस ऑल सर्वर्स एंड डिवाइसेस, यदि आपके पास, क्योंकि एक सिंगल सर्वर पे ना तो डेटा है ना, दे आर लोड बैलेंसर, दे आर मल्टीपल सर्वर्स, दे आर इंटरेक्टिंग एंड परफॉर्मिंग द टास्क इन द सीक्वेंस। तो यदि आपका टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो आप कभी भी क्योंकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लॉग्स पर सेकंड आ रहे हैं, तो आप एक टाइम डिफाइन करते हो कि इस 10:01 से 10:05 के बीच में इंसिडेंट हुआ। तो यदि आपके सभी सर्वर सेम टाइम सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है तो आप कभी भी किसी लॉग्स को प्रॉपरली निकाल नहीं सकते, प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब व्हेन द लॉगिंग हैपेंस, what is the most important steps? The most important step is synchronization of time across all servers and devices. यदि आपको टाइम सिंक्रोनाइज नहीं है तो आप कभी भी एक एग्जैक्ट लॉग इवेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड देन डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स, अलग अलग सर्वर्स अपने अपने क्लासिफिकेशन स्कीम से अपने अपने क्लासिफिकेशन डेटा और लॉग्स का है, तो वो कभी भी आप एक जैसा लॉग्स निकाल नहीं सकते। बाकी आइडेंटिटी, यूजर की जो आइडेंटिटी है यूजर और डिवाइस की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक लॉग्स और इंटीग्रिटी ऑफ द लॉग्स फाइल्स, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। बस हाँ, जनरल स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आता है कि लॉगिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं कि डेटा के स्पेसिफिक जो स्टोरेज एंड एनालिसिस और डेटा इवेंट्स का क्या होता है। तो प्रिजर्वेशन के लिए द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सेफगार्ड द इंटीग्रिटी और द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द पोटेंशियल डिवाइस एविडेंस के लिए एक स्टैंडर्ड ISO 27037 2012। सो अभी हमने ISO के कुछ स्टैंडर्ड याद किए थे उस दिन, पहले था कि ISO 17788, वो क्या था ISO 17788, किसी को आइडिया है? Which one? 17788। 17788. इसका क्वेश्चन नहीं पड़ा था। ये तो याद ही होना चाहिए, क्लाउड की डेफिनेशन है। सबसे पहले वाले दो एक 17788, 800 145 NIST, ये दो तो 100% याद होने चाहिए क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन में आए थे। इसके बाद हमने देखा था 27001 27002, वो क्या था 27001 27002? GDPR 27001 was GDPR. GDPR तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी। मैं ISO 20 से 20,000। अभिषेक, कार्तिक, पढ़ते नहीं हो, वापस जाके बताओ इसका 27001 क्या था और 2 क्या था? 27,000. InfoSec 27,000 InfoSec, I guess, information security. हाँ, करेक्ट। सो ISO के कोई भी IT कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी जो सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रही है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है 27 ISO 27001 सर्टिफाइड अपने आप को बोलते हैं वो।
तो वो कंप्लायंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और 2 में इसकी गाइड है। और जो क्लाउड के स्पेसिफिक है, यदि बोल रहे कि आई क्लाउड स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन से हैं, तो वही पढ़ा था अपने, ISO 27017 के, ISO 27017 है जो क्लाउड सिक्योरिटी रिलेटेड कंट्रोल्स है। ये कीवर्ड्स कुछ कुछ ही याद रखने हैं, वो तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो एक ये जो मैंने है 17778, 27001, 27002, 27017 जो कि क्लाउड सिक्योरिटी है, 27034 उसका डबल वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, और 27037 जो स्टोरेज और डेटा सिक्योरिटी पे बात करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा, है ना। तो कुछ कुछ अभी मैं एक एक्सेल दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ISO और NIST के वो हैं, और वो याद करने हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप उनसे एलिमिनेट कर सकते हो। डायरेक्टली वो नहीं पूछेंगे कि ISO 27017 किसके लिए अप्लीकेबल है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। पर वो एक ऑप्शन देंगे जिसमें से आपको पता लगेगा कि हाँ ये तो इसके रिलेटेड है ही नहीं, ये ऑप्शन डिलीट करते जाए। तो इसीलिए ये है। बाकी सिम सिस्टम पढ़ा हमने, सिम सिस्टम सबको पता ही होगा, नहीं तो फिर बताते हैं। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिम सिस्टम क्या होता है कि जितने भी लोग डिफरेंट सिस्टम्स में आ रहे हैं, जितने भी इवेंट डिफरेंट सिस्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, उनको सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सर्विस कंबाइन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, सिम एंड सिक्योरिटी इवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि सभी लोग सभी इवेंट्स एक जगह आ जाएं और उसकी एनालिसिस आसान हो जाए। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिम्स कैन डील विद रियल टाइम मॉनिटरिंग, correlation of events, notification and console views, commonly known as ACM. The second area, providing long term storage, analysis, reporting of the data, that is not known as a SIM. अब क्या होता है कि आपने डेटा लिया, तो डेटा से आप कई सारी चीजें कर सकते हो। एक्चुअली लॉग डेटा है कि आपका कब कब आपका सर्वर डाउन हो रहा है, तो आप एक इंसिडेंट रिपोर्टिंग कर सकते हो। आप ये डिजास्टर कब आएगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। किस किस पैटर्न में आपका सर्वर की परफॉर्मेंस क्या होती है, तो सर्वर की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस सबसे इंपॉर्टेंट सिम सिस्टम का यूज क्या है, दे रहा है सेंड दैट द सिम सिस्टम की कई कैपेबिलिटी से डेटा को एग्रीगेट कर सकता है, डैशबोर्ड डिस्प्ले कर सकता है उनका, उनके कोर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकता है, डेटा की इंटीग्रिटी भी इंश्योर कर सकता है कि डेटा मॉडिफाई हो गया बता सकता है कि सिम सिस्टम, अलर्ट दे सकता है, कंप्लायंस दे सकता है सब। फोरेंसिक एनालिसिस भी देखा हमने ना। सबसे इम्पोर्टेंट है पर ये चेन ऑफ कस्टडी बना सकता है। अब चेन ऑफ कस्टडी क्या है, एक क्वेश्चन चेन ऑफ कस्टडी का आएगा 101 क्वेश्चन। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, हम इसको फिर एक जब लीगल डोमेन 6 में फिर पढ़ेंगे ये सब चीजें। अभी जस्ट कीवर्ड पढ़ते हैं। चेन ऑफ कस्टडी क्या है, चेन ऑफ कस्टडी इज द chronological document or proper trial showing the proper trial, custody, control, transfer, analysis and disposal of the physical or electronic evidence. तो चेन ऑफ कस्टडी से एविडेंस का एक तरीका है जिसमें बताता है कि किस तरह से इवेंट हुई। जैसे कोई मर्डर होता है तो पुलिस चेन ऑफ कस्टडी करती है कि पहले क्या हुआ होगा, कभी वो क्राइम सीन बनाती है कि पहले क्रिमिनल यहाँ आया होगा, फिर ऐसे बहस हुई होगी, फिर ऐसा उसने उसको शूट किया होगा। तो दिस इज हाउ द इवेंट्स किस तरह किस ऑर्डर में चले। तो चेन ऑफ कस्टडीज के लिए क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए वो होता है। एंड इन ऑर्डर टू एविडेंस टू बी कंसिडर एडमिसिबल इन द कोर्ट, क्यों कराया जाता है कि कोर्ट क्यों उसके एविडेंस को एडमिसिबल करेगी। डॉक्यूमेंट शुड एग्जिस्ट फॉर पोजीशन, कंडीशन, लोकेशन, ट्रांसफर, एक्सेस टू एनालिसिस। दो इनको याद नहीं करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं। चेन ऑफ कस्टडीज एविडेंस के से रिलेटेड है ताकि एविडेंस एडमिसिबल और कोर्ट में हो। तो सिम कहाँ से आया, सिम वो मदद करता है कि चेन ऑफ कस्टडी में। तो सिम सिस्टम क्या है कि सिम ऑफ सिस्टम आपको बता सकता है कि कोई भी इंसिडेंट हुआ डेटा लॉस का या डेटा ब्रीच का, जब आप GDPR जैसे हिप्पा वाला केस था या आधार नंबर लॉस हुए डिलीट हुए, किसने किया ये प्रूफ करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी और सिम सिस्टम मदद कर सकता है। व्हेन इट हैपेंड, हु हैज डन इट, व्हाट वाज द एप्लीकेशन और पर्सन आइडेंटिटी। इस तरह से वो सिम सिस्टम उसको मदद कर सकता है। तो सिम सिस्टम चेन ऑफ कस्टडी में काम हो सकता है। एक नॉन रेपुटेशन हमने पढ़ा था, नॉन रेपुटेशन क्या करता है, क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट। नॉन रेपुटेशन बताना। वो ओरिजिनल सेंडर है कि नहीं, हाँ, सोर्स ऑथेंटिसिटी करता आइडेंटिटी। है, कीवर्ड है ना। तो नॉन रेपुटेशन, तो सिम सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज केस है वो नॉन रेपुटेशन है, ताकि जिसने एक्शन किया वो डिनाई नहीं कर सकते मैंने किया। क्योंकि ये तो प्रूफ करना है कि तुम कल्प्रिट हो, तुमने इंटेंशनली
डेटा ब्रीच किया, तुमने इंटेंशनली डेटा डिलीट किया या अनइंटेंशनली किया, बट यू आर द वन हु हैज डन इट. The non-repetition is means that someone cannot deny that he has done it. And how to make sure the source authenticity करता है non-repetition. तो SIM system non-repetition में बहुत मदद करता है. The SIM system can identify the who was the one who has done this task. ठीक है, ये Yeah. मॉड्यूल का लास्ट कंसेप्ट था. कोई डाउट है तो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. सो फार सो गुड. अभिषेक, Yes. अर्पित, ठीक है. चलो हम अब क्वेश्चंस पे जाएंगे. दिस इज लास्ट एक्टिविटी. यहाँ डोमेन 2 हो जाएगा हमारा कंप्लीट. दिस टू यू, अर्पित. अच्छा, ये तुमने देख लिया था. ये क्वेश्चन हमने पहले ले लिए इनको. हाँ, दिस टू यू, अर्पित. DRM solution should generally included all of the following. 4 पॉलिसीज बताई थी मैंने. DRM वो Yeah. IRM. Yes. Persistent, automatic dynamic consistency है. Expiration. 4 बताओ कौन कौन सी 4 थी. Persistency थी first तो. और 4 याद रखनी. मैंने कहा ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन इससे आएगा. Then रिवाइज नहीं कर रहे आप लोग. बाकी अभिषेक तुम बताओ या फिर कार्तिक की 4 पॉलिसीज क्या थी. परसिस्टेंसी तो थी, ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन भी थी, हम्म. और एक ऑडिटिंग वाली थी, हाँ. और एक और कौन थी. तो 2 ऑप्शन तो दिख गए अपन को. परसिस्टेंस देखिए, ऑटोमेटिक एक्सपायरी देखिए, और क्या था. हाँ, बी ऑप्शन ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं था. हाँ, डायनेमिक पॉलिसी कंट्रोल था. तो परसिस्टेंसी था, ऑटोमेटिक एक्सपायरी थी, डायनेमिक पॉलिसी कंट्रोल था, पर ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था. तो मीन एज आई मेंशन DRM से 2 क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन तो इस तरह से डायरेक्टली भी आ सकता है. विल सी मोर क्वेश्चन. अभिषेक शायद ड्रॉप करके आए. शी विल कंप्लीट दिस बिकॉज कुछ बचा नहीं, बस क्वेश्चंस ये देख लेते हैं. दिस टू यू. ओके, ये तो था अर्पित के लिए. दिस टू यू, कार्तिक. ओके. चेन ऑफ कस्टडी, क्योंकि इसमें सब प्रूफ टू अ थर्ड पार्टी लिखा हुआ है. डी. ओके. मुझे लगा था सी होगा. मतलब डी भी इंटेग्रिटी उसके लिए है, और आइडेंटिटी के लिए, लेकिन तो वो क्या अचीव करना चाहता है, यदि ये बोले तो नॉन रेपुटेशन अचीव करना चाहता है. और मेथड क्या है, चेन ऑफ कस्टडी है ना. जैसे हमने डेटा क्रिप्टो शेडिंग में देखा था. पर्पस ऑफ क्रिप्टो शेडिंग क्या है, डेटा को डिलीट करना. पर प्रोसेस क्या है, की डिलीट करना. ऐसे ही, राइट. ऐसे अचीव क्या करना चाह रहा है, सिम सिस्टम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी सिस्टम जो भी वो अल्टीमेट मालूम करना चाह रहे हैं कि ये किसने करा, है ना. तो नॉन रिपीटेशन, ताकि वो डिनाई नहीं कर सके जिसने किया हो. यही अचीव करने के लिए सिम सिस्टम हो, या फिर ये सिस्टम जहाँ बेन डिजाइन कर रहा है वो सिम सिस्टम ही डिजाइन कर रहा है एक्चुअली. तो वो क्या चाह रहे हैं कि अल्टीमेट पर्पस इज नॉन रिपीटेशन. ठीक है, तो यदि पर्पस पूछा जाए तो, गोल पूछा जाए तो नॉन रिपीटेशन सेलेक्ट करना है. गुड. ओके. दिस टू यू, अर्पित. Each of the following media and necessary techniques provide the most assurance in cloud normal. It's C. करेक्ट. यदि हमको फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑप्शन आ जाए तो हम क्रिप्टो शेडिंग पे जाएंगे ही नहीं. या तो क्रिप्टो शेडिंग लिख सकता है, वो इंक्रिप्शन भी लिख सकता है. क्योंकि हमने इंक्रिप्शन देखा था, इंक्रिप्शन का ही पार्ट क्रिप्टो शेडिंग था.
ऑप्शन में चार ऑप्शन देखे थे: ओवर राइटिंग, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, डिगॉजिंग एंड encryption. These are the four mechanisms for the data sanitization in the cloud. This to you, Arpit. Oh, so Karthik. IDS हमने नहीं पढ़ा, पर बाकी तीन तो पढ़े हैं, उसके हिसाब से आंसर देना। compliance reporting scene system रिपोर्टिंग के लिए तो सीमी सिस्टम है। reporting DLP है डेटा लॉस प्रिवेंशन के लिए, डेटा लॉस प्रिवेंशन की बात चल नहीं रही। IRM है डेटा इन यूज, मतलब डेटा की सिक्योरिटी के लिए। तो कंप्लायंस रिपोर्टिंग के लिए सिम सिस्टम बनाया गया है। दिस टू यू, अर्पित। Apart from using encryption at the file system level, what technology is most widely used to protect data stored in object? IRM. करेक्ट, क्योंकि हमने देखा कि ऑब्वियस इंक्रिप्शन इज वन ऑफ देम, पर हमने डेटा इन यूज के लिए हमने IRM देखा कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज का डेटा उसको यूज करने के लिए हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं IRM के लिए। बाकी HTTPS और VPN TLS तो ये अदर टेक्नोलॉजीज है। दिस गुड। दिस टू यू, कार्तिक। कार्तिक पढ़ रहे हो? हेलो Karthik is on mute. Karthik. कार्तिक। अच्छा sorry I wasn't okay on mute um what intellectual property हमने देखा था DRM इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए होता है, और स्पेशली हमने देखा था मूवीज। Copyrights. हाँ, कॉपीज मूवीज, और वो ये सब कॉपीराइट्स के हिस्से हैं। copyright हाँ copyright पे movies and CDs एंड अदर्स। दिस टू यू, अर्पित। It should follow the content it protects regardless ये of who. उसी का है, IRM का। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये Yeah. भी एक चार में से कौन सी वाली पॉलिसी लगेगी, एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा। The duplicate copy or how it is being utilized. Which of the following capabilities are straight above? ये हमने देखा था, किसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था ये लाइन? या ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट हो, कहीं भी कंटेंट हो। तुमने भी तो वीडियो देखा है, कार्तिक। अभी रिवाइज में क्या था? E option कौन सा? persistent protection ओके, एंड व्हाट अबाउट यू, अर्पित? That's right. Whether it is duplicate copy or original file or how it is being utilized. Yes, it's D. परसिस्टेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि चारों टर्म में कोई अपने आप ही डिफरेंस दिख जाएगा। हम कहीं पे भी पॉलिसी कंट्रोल कर सके लिखें, तुमको पॉलिसी में जाना है, ऑटोमेटिक यदि एक्सेस रिवोक हो जाए तो एक्सपायरेशन में जाना है। ऑडिट तो सिंपल ऑडिट देखा। और प्रोटेक्शन पर कहीं पे भी लोकेटेड हो, ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो, तो उसका प्रोटेक्शन होता है, परसिस्टेंट प्रोटेक्शन आएगा। दिस टू यू, कार्तिक। मैंने पढ़ाया नहीं अभी ये, पर IRM आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। किस चीज के लिए प्रोटेक्ट की जरूरत नहीं है?
किस चीज के लिए आईआरएम सॉल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। प्रिंट। प्रिंट में तो आईआरएम सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, प्रिंट को कंट्रोल कैसे करोगे? आप जब रीड एक्सेस है ना, तो किसी डेटा को रीड एक्सेस नहीं देना चाहते हो तो वो तो फाइल लेवल पे या एसीएल या फिर डायरेक्टरी लेवल पे परमिशन दे सकते हो कि आप कोई डायरेक्टरी में रीड ही नहीं कर सके। परंतु उसकी कॉपी बनाने में या तो उसको चेंज रीनेमिंग करने में या उसको प्रिंट करने में आईआरएम सॉल्यूशन 100% आईआरएम सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है नहीं अभी इंडस्ट्री में। तो रीड परमिशन हम फिर भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइल परमिशन को मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो रीडेबल ना हो। तो ये रीड परमिशन के लिए आईआरएम सॉल्यूशन की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, वो दूसरे तरीके से भी अचीव किया जा सकता है। ठीक है। ओके। या दिस टू यू अर्पित। Digital rights management DRM tool should enforce which is interportability with another program. इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब हमने पढ़ाया था दो तक, पोर्टेबिलिटी इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, वो सोचना उसके हिसाब से जवाब देना। Yeah. थोड़ा ट्रिकी है ये, और तुम भी कार्तिक सोचना कि वो जो फ्लो दिखाया था ऑनलाइन और ऑफलाइन का, वो वहां से है क्वेश्चन। It's a B. करेक्ट। सो हमने देखा था कि ऑथेंटिकेशन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सिस्टिंग ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो डीआरएम्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो इंटरऑपरेबिलिटी हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अदर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ। तो ये हमने देखा था कि जब जब वापस पॉलिसी इन्फोर्समेंट पॉइंट के पास रिक्वेस्ट गई, तो उसने एलडेप के थ्रू यूजर्स का ऑथेंटिकेशन चेक किया कि जो यूजर इज एक्सेसिंग द डेटा। सो डीआरएम में ऑथेंटिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डीआरएम में बोला कि परसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना है, पॉलिसी कंट्रोल करना है, एक्सपायर कर देना है, ऑडिट कर देना। बट हाउ टू आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट यूजर, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन खुद का ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। तो एक क्वेश्चन डीआरएम यूज किया है पर डीआरएम के फीचर्स नहीं पूछे, डीआरएम को पूछा है ऑर्गेनाइजेशन की के साथ कैसे वो मैच कर सकता है। ठीक है। सो फार सो गुड आइडिया आया होगा डीआरएम से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं जैसा ये था, ये भी सिंपल बुक से है। दिस टू यू कार्तिक। डेटा रिटेंशन पॉलिसी देखी थी हमने। हाँ, which is most data recovery Data procedures. the most. हमने देखा था कि वैसे हमेशा लोकेशन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लीगल लॉज लगते हैं उस पे ना, परंतु डेटा रिकवरी इन सब में से टॉप है, मैंने बोला, क्योंकि आप यदि डेटा रिकवरी नहीं कर पाओगे तो आप वो डेटा यूजलेस है आपके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि डेटा रिकवरी है, उसके बाद लोकेशन ऑफ द डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा कहाँ कहीं स्टोर हो रहा है। पर सबसे इम्पोर्टेंट यदि पूछा जाए तो डेटा रिकवरी ऑप्शन नहीं है, तो लोकेशन ऑफ द डेटा आपको जाना है फिर। ठीक है। दिस टू यू अर्पित, आई थिंक कार्तिक ने आंसर दिया था, हाँ। Yeah, this involves looking metrics and linking events that meaningful bundles. This technology provides and data aggregation. सो सिम सिस्टम में हमने देखा कि ये Correlation. कोरिलेशन कि आप मीनिंगफुल बंडल्स को इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे इस टाइम पे ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। डेटा एग्रीगेशन तो सिम सिस्टम करता है कि अलग अलग सोर्स से डेटा एक जगह ले Bundles आता है। बनाना, right, हाँ। right, bundles हाँ। बनाना. हाँ। और ये जो है कि डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो ये कोरिलेशनशिप वाला है कंसेप्ट। ठीक है। दिस टू यू कार्तिक।
Aid in which form? डी ऑप्शन का मतलब क्या है? समझ नहीं आया वो। किस वाले का? इंश्योरेंस। डी ऑप्शन का मतलब क्या है? डी ऑप्शन, एडिक्वेट लाइटिंग ऑफ द वर्क स्पेस। सिम सिस्टम लाइटिंग का तो कुछ काम करे, मतलब आपके वर्क स्पेस पे प्रॉपर लाइटिंग लगी हुई है तो वो अच्छा, डिस्ट्रैक्टर है। वो हाँ मतलब था क्या हाँ उसका? हाँ, तो इसीलिए वो वही ऑप्शन ऑप्शन। दिया हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिम सिस्टम का, तो उससे 100% वो ऑप्शन तो काट ही दो। और हाँ, ए राइट। ऑप्शन भी काट दो। हाँ, वो भी पर्सनल हाँ प्रोडक्शन पर। क्या मेरा वर्कलोड कम करे, वो उसके लिए सिम सिस्टम बनाया नहीं गया। उसके लिए तो बहुत सारे GUI टूल्स होते हैं जो आपके काम करने में मदद करते हैं, कम करने में। सिम सिस्टम का पर्पस, अल्टीमेट पर्पस तो नॉन रेपुटेशन है, और उसके साथ वो कई सारी चीजें और भी करता है। तो उनमें से कौन सी एक चीज कर सकता है वो? अच्छा, वो जो लिस्ट थी आपने हाँ बताई हाँ थी, हाँ हाँ, उस उसी लिस्ट में में। से थे वो लिस्ट आंसर। में भी है, कॉमन सेंस भी सोच सकते हो कि यार ये दो ऑप्शन तो कट गए। क्या वो साइज, लॉक साइज को डिक्रीज कर सकता है? वो तो लॉक को पढ़ता है, उसके पास तो साइज को डिक्रीज करने का, वो तो लॉक्स उसके पास आते हैं। उसको वो उन्हीं में से ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस करने के लिए वो एनालिसिस कर सकता है कि भैया कब कब सर्वर डाउन हो रहा है, कितना कौन सा रिसोर्स टाइम खा रहा है, तो वो रीड ऑपरेशन करता है। एक्चुअली सिम सिस्टम हमेशा रीड ऑपरेशन है। वो लॉक के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, ऑब्वियस वो लॉक के साथ छेड़खानी करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए वो सिर्फ रीड करता है, और रीड करने के बाद वो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस में मदद कर सकता है, कि वो बता सकता है कि कौन सा रिसोर्स कौन सा ज्यादा टाइम खा रहा है, कौन सा सर्वर बहुत रिस्पॉन्स टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स करने में, तो ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस में मदद कर सकता है। ठीक है, सिम सोल्यूशन। ओके, या। दिस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन का, दिस टू यू अर्पित। Which of the following is one of the benefits of monitoring solutions? Seriously. D. बाकी तीन ऑप्शन रिलेवेंट लग भी नहीं रहे। एक कॉस्ट सेविंग जरूर लग रहा है, सम एक्सटेंट तक कॉस्ट सेविंग कर सकता है, पर तो अल्टीमेट जो बेनिफिट है उसका, कि सभी लोग से एक साथ आ गए, फास्टर स्पीड से उनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं। यही सेम सिस्टम का मेन बेनिफिट है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन बन रहा है। दिस टू यू कार्तिक। ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो होते हैं, जैसे अपने लैपटॉप वहाँ पे ऑफिस में ले जाते हैं, तो वहाँ पे DRM टूल से यदि डिप्लॉय करना रहता है तो क्या चाहिए उसके लिए? आपके फ़ोन में एप्लीकेशन डाल सकते हो आप, मान लो कंपनी की आउटलुक वाली एप्लीकेशन डाली, कुछ भी डाला, तो उसके लिए वहाँ DRM इम्प्लीमेंटेड, तो उसके लिए क्या चाहिए? enhance security protocols, I guess A one. I guess A यूज़र one. कंसेंट, हाँ। user consent and action। क्योंकि जब ब्रिंग योर ओन डिवाइस हो तो आपके डिवाइस पे आपका कंट्रोल है, आपका कंसेंट होना चाहिए कि वो DRM टूल्स आपके यहाँ पे इंस्टॉल वो करने के लिए। कई एडिशनल परमिशन लेते हैं वो। तो उसके लिए अब एडिशनल परमिशन इंस्टॉल होने के लिए यूज़र कंसेंट ज़्यादा जरूरी है। दिस वाज एक लास्ट, ये एक्टिविटी 6 है, ये सेल्फ एक्टिविटी है। कोई एक टर्म होगी उसका, जैसे एक टर्म है, इसका आंसर आइडेंटिफाई करो। हमने देखा था कुछ टर्मिनोलॉजीज। ये वाली टर्म क्या कहलाती है? जब हम इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई लिखा है ना, उसको रिमूव करते हैं। कीवर्ड्स याद नहीं हुए। ठीक है, कोई नहीं, उसको याद करना, ये रोमनाइजेशन था। तो ऐसे ये टर्म्स है, वो सब कीवर्ड्स को अच्छा, हाँ। रिकॉल, हाँ रिकॉल करेगी। तो ये आज के लिए कंप्लीट हो गया हमारा।